has a great significance in the annals of India's education history. The National Education Day is being celebrated today to commemorate the birth anniversary of Maulana Abul Kalam Azad, who was a great patriot and educationist. Besides this, this week has a special significance for the DAV fraternity, as this week is also dedicated to pay respect to the vision of Mahatma Hansraj. Now I would request Principal Sir to come and light the lamp. मोबाइल आप साइलेंट मोड पे कर लें, ठीक है? ध्यान से कोई भी बात हो, किसी ने बोलना होता है बड़ी मेहनत से, ठीक है? Evaluated on the standards of international education. Education to him was a life force which could change the course of a person's life. Now we all know that it is an era of science and technology. IT sector has made a strong mark in all the fields. So I request Shrivati ma'am to come and express her views on IT in education. Good afternoon to all of you. As we are here to celebrate National Education Day, on this occasion I would like to share my views on a topic that is IT in education. IT in education means the use of IT refers the use of computer and its equipments and its technology in the field of education. Before discussing the impact of IT in the education, I would like to draw your attention towards the previous systems of education. Previously, there was a Gurukul systems of education in which the children have to stay far away from houses in Gurukuls. They have to live there till their education gets completed. In the 19th century, there was compulsory education to 14 years. In 20th century, new methods of education were there, that is, we use 21st century, we are here. And today we use projectors, LCDs, LEDs, Android phones, tablets, etc. for the purpose of education. Now, let's discuss some other spheres of IT in education. That is, for example, online admissions, online form fills, educations, examinations and results. Let's discuss first with online admissions. Previously, when we want to get admission to a particular educations, we have to visit each and every college or websites or official websites of the colleges or university, and we get admitted to it. During this process, we get search and apply for the course, submit online forms. Previously, when forms were filled, we have to visit the markets and shops online with the help of their websites. Next, online examinations. The IT also give us opportunity to give examinations online. For example, when we apply for banks or PU banks, then today's time we can do the examinations online via their websites. Next is online is education to impart or acquire knowledge. So education is the act or process of imparting or acquiring general knowledge, developing the powers of reasoning and judgment. Education is a systematic process through which a child or an adult acquires knowledge and experience. Education is not all about studying and getting good marks. It is really a means to discover new things. Education is most important in our life. Education plays a very important role in our life. Education is commonly referred to as the process of learning and acquiring knowledge. Education also inculcates in us the moral values. So now, not taking of your so much time, I want to say that education makes us civilized. It creates in us good behavior
Education leads us to the path of success. Education is the only process through which a person may become a good and responsible human being. So education is very important in our life. Thank you. Have a nice day. To come and say a few words on Mahatma Hansraj. आज के समारोह के मुख्य अध्यक्ष एवं स्वागत करती हूँ। आदर्श गुरुवर, आप सभी का मैं यहाँ पर आदरपूर्ण नमन करती हूँ, आपका सम्मान करती हूँ। मेरे सहयोगीगण तथा महाविद्यालय की असली एवं कर्मठ ताकत, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के उपलक्ष्य पर आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं तथा मैं भी अपने संबोधन में महात्मा हंसराज के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। महात्मा हंसराज का समर्पित जीवन आधुनिक समाज का मार्गदर्शक है। शिक्षा के क्षेत्र में उन जैसा नीर क्षीर विवेकी हंस आज दुर्लभ है। यदि हम उन्हें समाज रूपी मानसरोवर का हंस कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। महात्मा हंसराज ने अपना समस्त जीवन दयानंद शिक्षा वाटिका को संभालने में लगा दिया। उन्हीं के प्रयत्न से डीएवी संस्थाओं का बीजारोपण हुआ तथा उन्होंने अपनी सेवाएं डीएवी महाविद्यालय लाहौर से एक प्राचार्य के रूप में दी। 25 वर्ष तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी और 48 वर्ष की आयु में वे उससे कार्यरत हुए। इसके उपरांत वैदिक धर्म के प्रचार में वे जुड़े। नारी जागृति के लिए उन्होंने कन्या महाविद्यालय का शुभारंभ किया, जिसकी प्रेरणा से आज अनेक आर्य पाठशालाएं एवं महाविद्यालय शिक्षा एवं नारी उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। विधवा के रूप में कार्य किया। सरलता, सादगी, ईश्वर विश्वास, त्याग में जीवन, संस्कृति प्रेम उनके जीवन के आभूषण माने जा सकते हैं। 4 अप्रैल 1905 ईस्वी के कांगड़ा भूकंप में हजारों बेघर बेसहारा लोगों को बसाने, सहायता पहुंचाने तथा उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाले उनके व्यक्तित्व को कैसे भुलाया जा सकता है। 19वीं शताब्दी के देते हुए बस इतना कहूंगी कि आज मौलाना अब्दुल I think most of the students have opted Hindi medium. It's better to speak in Hindi. वास्तव में अगर देखा जाए, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सामाजिक रीतियों को समाप्त करने के लिए शिक्षा के महत्व को समझा। इसके पश्चात जो उनके अनुयायी थे, उन्होंने शिक्षा को आगे प्रसार करने के लिए अपना विशेष योगदान दिया। उनमें से एक अनुयायी महात्मा हंसराज जी, जिसके आपके सामने आज विचार रखे जा रहे हैं, महात्मा हंसराज जी थे, जिन्होंने लाहौर में, पाकिस्तान में आजकल है, उन्होंने पहला डीएवी स्कूल जिसकी स्थापना की गई। उसके बाद वो डीएवी कॉलेज बना और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह कॉलेज डीएवी कॉलेज अम्बाला सिटी, पहला हमारा डीएवी कॉलेज अम्बाला सिटी था, वहाँ ये शिफ्ट हुआ। उसके पश्चात सरकार ने भी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की और काफ़ी कोशिश की कि शिक्षा का विकास किया जाए। इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा अधिक जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे वो डीएवी थे। डीएवी संस्था, जो डीएवी मैनेजिंग कमेटी चित्रकूट रोड न्यू दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने काफ़ी संस्थाएं खोली और आज भी हमारी जो डीएवी की संस्थाएं हैं, 800 से अधिक संस्थाएं भारत में और विदेशों में कार्यरत हैं और एजुकेशन में अपना नाम रोशन कर रही हैं। और इसमें अगर हम हिमाचल की बात करते हैं, क्योंकि हम हिमाचल में हैं, कांगड़ा में हैं, तो हिमाचल की बात हमें जरूर करनी चाहिए। तो हिमाचल की हम बात करें तो यहाँ पर 60 से ऊपर जो है वो स्कूल मैट्रिक तक के सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, जो स्वामी दयानंद सरस्वती और महात्मा हंसराज की शिक्षाओं से भरपूर है। एक डीएवी डेंटल कॉलेज सोलन में है और 3 हमारे डीएवी संस्थाएँ हैं, डीएवी कॉलेज कोटखाई, डीएवी कॉलेज बनीखेत, डीएवी कॉलेज कांगड़ा, जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है। और जहाँ तक डीएवी कॉलेज कांगड़ा की बात करते हैं, डीएवी कॉलेज कांगड़ा की पहचान एक अलग ही पहचान है। इसकी स्थापना आपको पता है 1976 में हुई। प्रिंसिपल आरसी जीवन ने इसकी स्थापना की। उन्होंने अपने अंतक प्रयासों के साथ शैक्षणिक वातावरण यहाँ कायम किया और यहाँ पर जो है वैदिक धर्म से ओतप्रोत शिक्षा दी जाती है। यही कारण है कि यहाँ पर जितने विद्यार्थी यहाँ पढ़े हैं, अधिकतर विद्यार्थियों को अच्छी जॉब मिली हुई है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर्स हैं और बैंक मैनेजर्स हैं, और इसमें जो है कोई लेक्चर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी लगे हुए हैं। तो अधिकतर जो विद्यार्थी हमारे बहुत ही अच्छे पदों पर आसीन है। ये सिर्फ डीएवी संस्थाओं का ही डीएवी संस्थाओं के कारण ही वो ऐसी पोस्टों को प्राप्त कर पाए हैं। तो मेरिट आती है और जो परंपरा शुरू में क्लास जीवन में इसकी मैच की चलाई
बात करते हैं स्पोर्ट्स में भी हमारे कॉलेज सबसे आगे है। इन्होंने 15 बार बास्केटबॉल चैंपियनशिप एक्टिविटीज में भी हमारा जो कॉलेज सबसे आगे है। यहाँ पर इनकी बुक्स लिख रहे हैं, तो इसमें क्या नाम है डील की संस्थाओं का हम टीचर से बात करते हैं। हमारे जितने भी टीचर हैं विद्यार्थियों को समुचित शिक्षा देने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। यही कारण है कि हमारे यहाँ MSc फिजिक्स केमिस्ट्री 2013-14 से करंटली वो आसपास के विद्यार्थी थे जो लोग बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे, उनके लिए एक सुनहरी अवसर रहा। उन लोगों ने एडमिशन लिया है। और प्रोफेसर कपिल जी, प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप जी, CK सैनी जी, मेरे अन्य प्राध्यापक प्राध्यापिका साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों, ये जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, इस राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम महात्मा हंसराज जी को भी याद कर रहे हैं। कल मुझे प्राचार्य महोदय ने बताया कि इस दिवस को हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में जो मना रहे हैं, उसमें महात्मा हंसराज जी की जो शैक्षिक क्षेत्र में उपलब्धियां हैं, उनकी भी चर्चा करना आवश्यक समझेंगे। सबसे पहले हम महात्मा हंसराज जी का स्मरण करने से पूर्व उनका जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है या उनकी जो पृष्ठभूमि है, उसके विषय में थोड़ी चर्चा करना आवश्यक है। शिक्षा या विद्या जिसको कहा जाता है, जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने इसके ऊपर संकेत किया कि शिक्षा केवल पढ़ाई लिखाई कर लेना, डिग्री मात्र ले लेना या किसी उच्च पद पर आसीन हो जाना मात्र तक सीमित नहीं है। हमारे यहाँ वेद में एक मंत्र आता है, अंधं तमा प्रविशन्ते ये अविद्या उपासते। जो लोग विद्या की उपासना नहीं करते हैं, जो लोग शिक्षा को ग्रहण नहीं करते हैं, अविद्या उपासते, जो लोग अविद्या को प्राप्त होते हैं, विद्या से हट करके अविद्या के गर्त में गिर जाते हैं, वे अंधं तमा प्रविशन्ते, वे घोर अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। क्या कहते हैं, इन्होंने तो मेरी बोलती बंद कर दी है। नेवरदिलेस ये भी हमारे पास जो है ना, महात्मा हंसराज के बराबर तो नहीं मैं इनकी तुलना कर सकता, लेकिन ही नोज द सब्जेक्ट ऑफ आर्य समाज। स्टूडेंट्स गिने चुने बैठे हैं हमारे पास, टीचर्स भी हैं गिने चुने। बात संख्या की नहीं है, बात मैसेज की है। आप लोग आगे भी मैसेज दे सकते हो। हमें गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टिव था, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि हमने नेशनल एजुकेशन डे पे कोई ना कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। तो मैंने सोचा कि एक टॉक ऑर्गेनाइज की जाए, और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इस वीक को DAV कॉलेज मैनेजिंग कमेटी नई दिल्ली जो है वो महात्मा हंसराज के वीक के तौर पे सेलिब्रेट कर रही है। पूरे DAV इंस्टीट्यूशंस में ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। हमने पिछले महीने ही अभी ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। एक शायद 14 को हम HDFC बैंक स्पॉन्सर करेगा, शायद हम ऑर्गेनाइज करेंगे। लेट मी कम टू द पॉइंट, लेट मी टॉक टू द सेंसिटिव सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के ऊपर थोड़ी सी बात मैं ज़रूर करूँगा। कई बार सवाल उठ जाता है कि एजुकेशन का मतलब क्या है। अभी रुचि बता रही थी कि शायद कोई लैटिन वर्ड के बारे में कि शिक्षा क्या है। हर आदमी की शिक्षा के बारे में परसेप्शन अलग होती है। परसेप्शन का मतलब है सोच। हर आदमी के लिए शिक्षा का अलग मीनिंग है। किसी आदमी के लिए शिक्षा का मतलब है मुझे डिग्री मिलेगी, इसके बेस के ऊपर मुझे B.Ed के बाद स्कूल में नौकरी मिल जाएगी। कोई आदमी समझता है शिक्षा हासिल करने के बाद